Morning, dear students. Once again, welcome in history class. You know very well which chapter we are doing. First chapter, the rise of nationalism in Europe. We have already done part 1. Now we will discuss the part 2. Which topic we will cover? First, we will discuss about the conservatisms. What do you mean by conservatisms? A new conservatisms after 1815. Why we are saying the after 1815? That policy, here we can say that new concept developed in Europe. Defeat of Napoleon, or that conservatism after developed the defeat of the Napoleon, और which year Napoleon defeated? 1815. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नेपोलियन को वाटरलू के जो वॉर हुआ उसमें किसने डिफीट किया? Conservatism, first we will discuss the what do mean by conservatism. Conservatisms believed that traditional institutions क्या थे आपको पता है? monarchical system, the church system, the social hierarchies, properties and the family should be preserved. These were the ideas of the conservatives and they believe in these ideas. The European powers, यानी कि which European powers defeated Napoleon? तो PRAB, Prague. P means Prussia, R means Russia, A means Austria, B means Britain. यानी कि these were the four powers. They collectively came together and they defeated Napoleon. And which place? Waterloo, in the Battle of Waterloo in 1815. P means Prussia, R means Russia, Austria and Britain. They collectively defeated Napoleon. And after that they met at Vienna. At which place they met? Vienna, to draw up for a settlement for Europe. For which purpose they met? For यानी कि they want to settle, यानी कि एक settlement करना चाहते थे किसके लिए? यूरोप कॉन्टिनेंट के लिए. तो the Congress hosted by the Austrian Chancellor, यानी कि who hosted that Congress hosted by the Austrian Chancellor, and then who was the Austrian Chancellor? Duke Metternich. ये क्वेश्चंस बन सकता है कि इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ वियना हेल्ड? 1815. एंड देन ट्रीटी ऑफ वियना होस्टेड बाय द विच ऑस्ट्रियन चांसलर? तो व्हाट इज द आंसर? द कांग्रेस होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच. और आफ्टर दैट ड्रू अप द व्हाट दे प्रिपेयर्ड हियर? द ट्रीटी ऑफ वियना. एंड ट्रीटी ऑफ विच सेटलमेंट दे हैव डन फॉर हियर? ट्रीटी ऑफ वियना. और इन विच ईयर? 1815. और ये भी आ सकता है कि हु कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन? विच यूरोपियन पावर्स? तो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन. नाउ व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना? यानी कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई 1815 में, इसके क्या मेन प्रोविजंस किए गए, क्या इसमें पॉइंट्स रखे गए? फर्स्टली द ब्रूबोन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड. जैसे हमने देखा कि ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रूबोन डायनेस्टी वॉज डिस्पोज, उसको कर दिया गया था, डिपोज कर दिया गया. एंड आफ्टर दैट डिपोज करने के बाद क्या हुआ? वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया. तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई, फिर मोनार्की सिस्टम को हटाया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना वहाँ पर. तो अगेन क्या कहता है? ब्रूबोन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर, जो ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या हुआ था? डिपोज. आफ्टर दैट फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज. कौन सी टेरिटरीज फ्रांस ने लॉस्ट कर दी? टेरिटरी में जो एरियाज which had been annexed under Napoleon. यानी कि those areas were conquered by the Napoleon. What happened? France lost all the territories. Which territories lost or which territories were not lost? We will see. Which had been annexed under Napoleon. यानी कि जो नेपोलियन ने अपने रूल के दौरान उसके ऊपर कब्जा किया था. Firstly we'll discuss why a series of states were set up on the boundaries. अब क्या किया गया? फ्रांस की पूरी बाउंड्रीज के ऊपर एक काफी स्टेट्स को लगाया गया. Why? For which purpose? France to prevent it expansion in future, ताकि फ्रांस अपनी सीमा रेखा को आगे नहीं बढ़ा पाए फ्यूचर में. इसके लिए क्या किया गया? द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, और विच वॉज इंक्लूडेड ऑफ द बेल्जियम ऑल्सो. यानी कि द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, और उसमें बेल्जियम भी किसका पार्ट था? नीदरलैंड का. बाद में हमने फर्स्ट चैप्टर में डीपी में पढ़ा कि बेल्जियम गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नीदरलैंड इन विच ईयर? इन 1830. was given the which portion? नॉर्थ पार्ट. यानी कि नीदरलैंड को फ्रांस का कौन सा पोर्शन दिया गया? नॉर्थ पार्ट. गिनोवा वॉज एडिड टू द पिडमंट, और गिनोवा को कौन सा पार्ट दिया गया फ्रांस का? साउथ पोर्शन. एंड प्रूशिया वॉज गिवन द न्यू टेरिटरीज, यानी कि प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज दी गई. न्यू टेरिटरीज
और विच एरिया, कौन सा एरिया था न्यू टेरिटरीज का? वेस्टर्न फ्रंटियर, यानी कि वेस्ट का पार्ट दिया गया। एंड ऑस्ट्रिया वॉज गिवन नदर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को कौन सा पार्ट दिया गया? नदर्न इटली। बट जर्मन कन्फेडरेशन, German confederations was set up of how many states? 39 states were included in the German confederation, so that was also set up by the Napoleon. Was left untouched, यानी कि और सारे एरिया को कैप्चर में लिया गया, लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन था जो नेपोलियन ने सेटअप किया था उनको छोड़ दिया गया। कितने स्टेट्स थे उसके अंदर जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर? 39 स्टेट। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा 39 स्टेट थे, सबकी अलग डिफरेंस करेंसी, डिफरेंट टैक्स सिस्टम, डिफरेंट था। इसके लिए वहां पर ऑस्ट्रिया के इनिशिएटिव पर जोलवेराइन यानी कि यूनियन बनाई गई, उसके थ्रू जो 30 करेंसी थी उनको कितने चेंज किया गया? 2 में किया गया। तो जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स वाज लेफ्ट अनटच्ड। इन द ईस्ट, यानी कि फ्रांस के ईस्ट में रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट की तरफ रशिया को कौन सा पार्ट दिया गया? पोलैंड का पार्ट दिया गया। एंड प्रूशिया वॉज गिवन ए पोर्शन ऑफ, प्रूशिया को भी कुछ एक पोर्शन दिया। किस साइड और मिला प्रूशिया को? इन सैक्सोनी में। तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब दे बिलीव्ड इन द ओल्ड ट्रेडिशन। ओल्ड ट्रेडिशन का मतलब चर्च, एंड वी कैन से दैट द मोनार्किकल system. And what was the main aim? What they have want to establish here? Conservatism, they want to establish monarchical system. Those were overthrown by the Napoleon. Now they want to again restore the monarchical system, and after that censorship were also imposed there. During the French Revolution we have seen कि they have given the idea of liberty, equality and fraternity. इस आइडिया को डेवलप किया गया था। दे डोंट वांट दिस टाइप ऑफ आइडिया, दे वांट ओनली हियर मोनार्किकल सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिबरल्स एंड द रिवोल्यूशनरीज आइडियाज। द रिवोल्यूशनरीज, हु आर द रिवोल्यूशनरीज हियर? इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द लिबरल्स। लिबरल्स यानी कि दे फाइट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स। वी नो वेरी वेल कंजर्वेटिव्स रेजिम वाज वेरी autocratic and it was established in which year? 1815, when after the Napoleon defeated 4 main European powers defeated. PRAB. P means Prussia, Russia, Austria and England. So for that purpose the revolutionaries, who were the revolutionaries? Liberals, and they established of secret societies. For that purpose what they established here? Secret societies to spread the ideas of which idea they want to establish here? Nationalisms, and they oppose the conservatisms because conservatisms believes in the traditional belief, yani they believe in the monarchical system, we can say that the church system, and they don't give any importance to family values. Liberals began to operate underground. For that purpose liberals began to operate underground, and for that they have started the underground, okay? Secret societies they set up for that purpose, or among them who are the main here? Giuseppe Mazzini. Or what was the main objective of these liberals? They want to oppose the monarchical system because they were not in the favor of the monarchical system, and they fight for liberty and freedom. क्योंकि जो कंजर्वेटिज्म्स जो सेटअप हुआ सेंसरशिप के थ्रू, उन्होंने वहाँ पर क्या रिमूव कर दिया? लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑल्सो। तो दे फाइट फॉर कि वो अगेन दे वांट टू स्टेब्लिश हियर लिबर्टी एंड फ्रीडम. So what was the main objective of the liberals? To oppose monarchical system, to oppose the autocratic regime also, because conservatism believe in autocratic, and for that purpose these revolutionaries saw the creation of nation state. So that's why revolutionaries what they feel here कि nation state should be developed here for the gaining the, for किसके purpose, for which purpose? For the struggle, and with the help of this struggle for they can gain the independence, या we can say that they can get the freedom, ताकि उनको freedom मिल सके. Now we will discuss the age of revolution in 1830 to 1848, यानी कि 1830 से लेकर 1848 तक इन रिवोल्यूशनरीज ने ये रिवोल्यूशन स्टार्ट की. 1830 से कैसे लोग इंस्पायर हुए? कहाँ कहाँ पर? इटली, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, लेड बाय द. और ये जो रिवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया? कौन उनके लीडर थे? लिबरल नेशनलिस्ट. कौन थे? हु वर द लीडर हियर? लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग, और दे बिलोंग्स टू विच क्लास? मेनली एजुकेटेड मिडिल एलाइट क्लास.
तो फर्स्ट दैट पर्पज फर्स्ट अपहेवल इन फ्रांस, सबसे पहला जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कहाँ पर हुआ, फ्रांस में, इन जुलाई 1830. इन विच ईयर इट वॉज स्टार्टेड, इन जुलाई 1830. एंड इंस्टॉल्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और यहाँ पर क्या स्टैब्लिश की गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम स्टैब्लिश, खाली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पावर नहीं, अब किंग तो रहेगा पर किंग मोनार्की का सिस्टम में किसके थ्रू काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. तो इसीलिए ऐसे मोनार्की को अब यहाँ पर क्या बोला, क्या स्टैब्लिश की गई है फ्रांस में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और उसका किसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, लुइस फिलिप. हु आर द हियर मोनार्क, लुइस फिलिप. मैटरनिच रिमार्क, इसके ऊपर मैटरनिच ने एक रिमार्क दिया है कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड, वाई द लाइन सेट बाय द मैटरनिच. ड्यूक मैटरनिच ने वर्ड यूज क्यों किए कि व्हेन फ्रांस नीजेस, जब फ्रांस सीखता है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड, यानी कि पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है उसकी वजह से. क्यों कहना चाह रहे हैं, फ्रांस नीजेस जो भी स्टार्टिंग हुआ है, हमने देखा 1789 रिवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रांस से हुआ. यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन से आइडियाज डेवलप हुए, ऑल ओवर द यूरोप, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, दीज आइडियाज ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम हियर. तो इसलिए कहा गया कि व्हेन फ्रांस नीजे, यानी कि सारे जो भी रिवोल्यूशन है, जो भी काम हो रहे, जैसे लिबर्टी इक्वलिटी के लिए, या कहें कि जो भी लोगों ने मोनार्की का सिस्टम को दे वांट टू ओवरथ्रो, उखाड़ फेंकना चाहते थे, तो वो सब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रांस से फिर वो स्प्रेड होकर दूसरे प्लेस पे जा रहा था. इसलिए ड्यूक मैटरनिच ने क्या रिमार्क किया है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड. क्लियर. नेक्स्ट, आफ्टर द फ्रांस से रिवोल्यूशन कहाँ गया, द जुलाई रिवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स क्या था, बेल्जियम की कैपिटल, जो हमने डीपी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रुसेल्स. अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. बिफोर द 1830 बेल्जियम वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ द नीदरलैंड्स. बट जो भी ये रिवोल्यूशन हुआ, स्पार्क हुआ, कहते हैं ना चिंगारी लगी, उससे अफेक्ट होकर पहले सबसे पहले फ्रांस में हुआ जुलाई 1830, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की गई, लुई फिलिप. आफ्टर दैट स्पार्क मूव टू द बेल्जियम में गई, क्योंकि बेल्जियम वॉज ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. तो अब ये अब क्या हुआ 1830 में, अब नीदरलैंड से वी कैन से दैट द बेल्जियम ऑल्सो सेपरेटेड, यानी कि 1830 में बेल्जियम गेन द इंडिपेंडेंस. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दैट एजुकेटेड एलाइट, ये कहा ना कि हमने कि हु लेड दिस मूवमेंट, लिबरल नेशनलिस्ट. और लिबरल नेशनलिस्ट में हु बिलोंग्स टू दैट, एडुकेटेड मिडिल एलाइट क्लास. और दीज एजुकेटेड मिडिल एलाइट अक्रॉस यूरोप, खाली यूरोप में ही नहीं रहे, अक्रॉस यूरोप, यानी कि यूरोप से बाहर भी गई इस आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए. तो इसी की वजह से यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1821 में. कैसे कह सकते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहाँ पर स्टार्टिंग मानी जाती है कि ग्रीस, यानी कि तो ग्रीक एक पूरा हम उसको बोल रहे हैं सिविलाइजेशन का नाम है. ग्रीस क्या है, कंट्री है. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर, यानी कि ग्रीस किसका पार्ट था, ओटोमन एम्पायर का. कब से, सिंस 15th सेंचुरी से. अब यहाँ पे देखो क्यों ग्रीस ओटोमन एम्पायर के अंडर में क्यों नहीं रहना चाहता था. ग्रीस क्या थे, क्रिश्चियनिटी कंट्री थी, यानी कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करते थे यहाँ पर. और ओटोमन एम्पायर क्या था, ओटोमन टर्क्स, यानी कि दे बिलोंग्स टू इस्लाम रिलीजन. तो ये दोनों को मतलब इस रिलीजन वाइज ही डिफरेंसेस हैं. तो यहाँ पर इसीलिए एज द ग्रीस को और किस नाम से जानता है, ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशंस, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. तो इस सिविलाइजेशंस में, यानी कि इस वॉर में, जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसमें इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ऑल्सो सपोर्टेड. इसके लिए इन्होंने क्या कलेक्टेड सम फंड ऑल्सो. ही वेंट टू फाइट इन अ वॉर बट वेयर ही डाइड ड्यू टू फीवर इन 1824. यानी कि लॉर्ड बायरन जो इंग्लिश पोइट थे, उन्होंने भी इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन किया. इसके लिए इन्होंने फंड कलेक्ट किया. ही वेंट टू फाइट इन वॉर ऑल्सो बट ही डाइड इन 1824 ड्यू टू फीवर. Clear. After that, the Treaty of Constantinople 1834, यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ग्रीस, ये संधि हुई दोनों के बीच में. अब किसमें, ओटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच में कॉन्स्टेंटिनोपल. और इन विच ईयर 1832. और अकॉर्डिंग टू दैट दिस ट्रीटी ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. अब यानी कि इन विच ईयर ग्रीस recognized as an independent nation, we can say that in 1832. Clear.
और कौन सी ट्रीटी हुई? द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लियर? और किस किस में क्यों? क्योंकि ग्रीस क्या थे? क्रिश्चियनिटी रिलीजन बेस्ड था, और जो ओटोमन जो एम्पायर था ये क्या था? इस्लाम रिलीजन बेस्ड था। तो दोनों यानी कि ये भी अब ये आइडियाज धीरे धीरे स्प्रेड हुए, तो यानी कि दे ऑल्सो वांट टू गेन द इंडिपेंडेंस, यानी कि दे डोंट वांट टू बिकम ए पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। तो इसमें मेनली कौन से पोइट ने मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया? इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन। और इन विच ईयर ही डाइड? 1824। अब ये भी पूछ सकते हैं कि विच कंट्री is called the cradle of the European civilization? तो Greece as the cradle of European civilization. Clear? और in which year the Treaty of Constantinople signed? In 1832, and according to this treaty, Greece was recognized as an independent nation. तो dear students, we have discussed about the age of revolution, यानी कि 1832 1848 कैसे वहाँ पर रिवोल्यूशन हुई? सबसे the first upheaval we can see in the France in July 1830. After that, that spark moved into the Brussels, यानी कि capital city of Belgium. At that time, Belgium was a part of the Netherlands, यानी कि Belgium gained the independence from the Netherlands in which year? 1830. After that, educated elite they across Europe also. So Greek War of Independence also started. Why? Because Greece was a part of the Ottoman Empire since 15th centuries. Or after that, which English poet main contributed here? Lord Byron, but he died in 1824 due to the fever. And which treaty was signed between two countries? Treaty of Constantinople in 1832. According to this treaty, Greece was recognized as an independent nation. I hope, dear students, you got it that paragraph in the proper way. Now we will discuss about the romanticism, romantic imagination and national feeling. Now we will discuss the romanticism. We know very well the development of nationalism did not come only through the wars and territorial expansion. It means how the national feelings can be developed. Culture also played an important role for creating the national feeling. How they are creating, we can say that the creating the idea of the nation through the art, poetry. We can say that stories, music help express and shape the national feeling among the people. How? First we will see what do you mean by romanticism. Romanticism was a cultural क्या था? Movement that tried to create a sense. क्या create sense की? Create a sense of a shared collective heritage as a basis of a nature. और cultural का मतलब क्या है? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि culture played an important role for creating the idea of the nation. Or how can we develop these ideas? With the help of art, poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. Now romantic artists criticize, romantics जो artists थे, they criticize the which ideas? Reasons and science. They have not accepted these ideas. They were saying कि how can we create the national feeling among the people? Through the art, poetry, stories, music shape nationalist feelings, यानी कि with the help of these ideas we can create the national feeling among the people. Which are the ideas? Art, poetry, stories, music shape nationalist feelings among the people. You can say the German philosopher. Who was a German philosopher? J. Gottfried Herder. According to that कि true German spirit या true German culture can be discovered among the common people. How can we develop the true German spirit among the people? Among the people मतलब ordinary people. We can say that the ordinary people were das wo. With the help of the through folk songs, folk poetry and folk dances. यानी कि these with the help of the folk dances, folk songs, folk poetry, we can develop the national feeling among यानी कि that the true spirit of the nation was popularized. They have emphasis on the vernacular language also. Vernacular language मतलब those language we are using, local language you can say that, those we are using in our day to day life, जो language हम अपनी day to day life में use करते हैं. And how they emphasis on vernacular language and folklore. How can we develop the national feeling among the people with these ideas? Where the mostly people are illiterate, जहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, those who don't know how to read and write. So with the help of the vernacular language and the folklore, we can create the national feeling among the people also. This is the case. We can take the example here in the Poland. How
दे हैव यूज द लैंग्वेज, कि कैसे उन्होंने एक लैंग्वेज को मीडियम बनाया अपना नेशनल रेजिस्टेंस के लिए। पोलैंड, पोलैंड पार्टीशंस बाय, यानी कि इन द 18th centuries, इन द 18th centuries बाय द ग्रेट पावर्स, यानी कि पोलैंड वॉज पार्टीशंस बाय द ग्रेट पावर्स। किस किसी ने उसको पार्टीशन कर दिया? रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, विच वर द रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। क्लियर? इवन तो it means Poland was not having the national feeling because it was partition, but after that nationalist feelings were kept alive, यानी कि उन्होंने अपनी नेशनली जो फीलिंग्स थी वो किसके थ्रू जिंदा रखी? थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ, ये क्वेश्चंस बन सकता है कि जो नेशनल फीलिंग थी पोलैंड ने किसके थ्रू अपनी मतलब अलाइव रखी? विद थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज, थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं थ्रू जो आप इसमें दे सकते हैं कैरोल करपुंस्की, फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। जो वहाँ का म्यूजिशियन था मेनली कैरोल करपुंस्की, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल, किसके थ्रू जिंदा रखा? ओपेराज एंड म्यूजिक्स। क्लियर? नाउ वी कैन से दैट द लैंग्वेज ऑल्सो यूज एज ए, तो लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग nationalist sentiment, या वी कैन से दैट यूज लैंग्वेज टू रेजिस्ट टू फॉरेन डोमिनेंस, यानी कि फॉरेन डोमिनेंस का विरोध करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? लैंग्वेज का। जैसे आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, यानी कि पोलैंड के ऊपर किसने कैप्चर कर लिया? रशिया ऑक्यूपाइड दैट एरिया, सम एरिया। तो नाउ द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स आउट ऑफ द स्कूल्स, तो यानी कि रशिया का कैप्चर हो गया पोलैंड पे, तो वहाँ पर जो पोलिश लैंग्वेज थी उसको तो क्या कर दिया गया? was forced out of the schools and Russian language was imposed everywhere। और वहाँ पर पोलैंड के अंदर कौन सी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे देगी? रशियन लैंग्वेज को। और पोलिश लैंग्वेज was forced out of the schools and the Russian language was imposed everywhere। और after that what happened in 1831? Armed rebellion, they revolted against the Russian authorities या Russian ruler, बट आफ्टर दैट दे क्रैश, लेकिन उनको दबा दिया गया उनके विद्रोह को। क्लर्जी इन पोलैंड, आफ्टर दैट व्हाट हैपन? क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज, अब वो क्या किसको एक वेपन हथियार के रूप में यूज करने लगे? लैंग्वेज को। लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि विरोध करने के लिए किसका? फॉरेन डोमिनेंस का। फॉरेन डोमिनेंस का कौन था इनके ऊपर? रशिया। तो पोलिस क्या हुआ? नाउ द पोलिश लैंग्वेज वर यूज देयर, विच वेयर इन द व्हेन दे गैदर्ड हियर इन द चर्च गैदरिंग्स एंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जब भी वो चर्च के लिए इकट्ठा होते हैं सब कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? पोलिश लैंग्वेज। या कोई भी उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना है वो उसके लिए भी कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? पोलिश लैंग्वेज। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपन? एज ए रिजल्ट प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इनटू जेल, काफ़ी बिशप्स को, प्रीस्ट को जेल में डाल दिया गया। एंड वर सेंट टू साइबेरिया, उनको जेल में भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसको नहीं माना था? रशियन अथॉरिटीज़ को नहीं माना। दे डिडेंट ओबे द, और सेकेंड उन्होंने क्या किया? दे डिडेंट गिव देयर प्रीच इनटू रशियन लैंग्वेज, उन्होंने रशियन लैंग्वेज को फॉलो नहीं किया गया। तो इसका मतलब कहने का मतलब कि पोलिश जो लैंग्वेज थी वो उसको क्या इंपॉर्टेंस मिल रही थी यहाँ पर? रशिया का डोमिनेंस होने के बाद नो, रशियन लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई। तो कहने का मतलब क्या है? द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल। लेकिन यहाँ पर पोलैंड के लोग किसका यूज कर रहे थे? क्लर्जी हैं, जो प्रीस्ट हैं, बिशप्स हैं, यानी कि सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, यानी कि रशियन डोमिनेंस के खिलाफ वो कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे थे हथियार के रूप में? पोलिश लैंग्वेज का। तो यानी कि हमने देखा कि कल्चर कैसे, रोमांटिसिज्म में कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग द नेशनल फीलिंग अमंग द पीपल, और विद द हेल्प आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक, फोक डांस, फोक सॉन्ग, दीज आर द हेल्प। क्लियर? Now in the starting we have discussed कि the nationalist feelings we cannot develop, we didn't develop only through the wars and territorial expansion, यानी कि we can develop with the help of the art, poetry, stories, music shaped a national feeling। and the German philosopher J. Gottfried Herder ने भी क्या बोला है कि a true German spirit या true German culture can be developed या can be dominated through with the help of the कॉमन पीपल। किसके थ्रू कॉमन पीपल में हम डेवलप कर सकते हैं? फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री एंड फोक डांसेस। और दे हैव एम्फसाइज्ड हियर द वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द फोकलोर बिकॉज
Uneducated people, they didn't understand the other things, they understand only the vernacular language, कि उन्हीं की भाषा में उनको कैसे समझाया जाए, कैसे उनके अंदर नेशनल फीलिंग को डेवलप किया जाए. और अकॉर्डिंग टू आवर बुक वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ द पोलैंड. पोलैंड का हमने यूज़ किया कि उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को कैसे एक नेशनल रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ किया था रशियन के खिलाफ. और ये ग्रेट पावर्स थी 18th सेंचुरीज में, पर इसको डिवाइड कर दिया रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने. फिर भी उन्होंने अपने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को किसके थ्रू डेवलप रखा, म्यूजिक एंड लैंग्वेज के लिए. जो वहाँ का मेन म्यूजिक कह रहे हैं ना, कैरोल करपुंस्की के थ्रू. एंड यूज लैंग्वेज टू रजिस्ट टू फॉरेन डोमिनेंस, यानी कि फॉरेन डोमिनेंस करने के लिए, उसको रजिस्ट करने के लिए उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की. आफ्टर रशिया, यानी कि रशिया ऑक्यूपाइड द पोलैंड, आफ्टर दैट व्हाट हैपन, यानी कि पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स टू कम आउट ऑफ द स्कूल्स. एंड विच लैंग्वेज इम्पोज एवरीवेयर, Russian language. But where priest, yeah, we can say that the clergy were using the which language here, Polish, for the church gathering, yeah, for the giving the religious instructions. But after that they were also put into jail and they sent to Siberia also. Why? Because they were not giving their religious preach into Russian language. So it means we can say that ki the use of, we can say that the use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. So dear students, we have discussed about the romanticism's paragraph. I hope you understand in the proper way. For that purpose, again what we will do, you will read one line by line all the points. Now we will discuss about the hunger, hardships and popular revolt. Hunger, hardship and popular revolt. The 1830 were years of great economic hardships in Europe. Now we will understand why. Why the 1813 years were the great economic hardships in Europe. Here what happened? Enormous increase in populations all over Europe. सबसे पहले तो क्या कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th centuries एंड इनोरमस, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो ऑल ओवर यूरोप में काफ़ी इंक्रीज हो गई. तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई? reduce jobs, many people reduce their jobs, and after when they will reduce their job, what will be happen? Unemployment will be occurred here, and large scale rural migrations to cities. तो क्या हुआ, लोग रूरल यानी कि गांव से कहाँ माइग्रेट कर गए, सिटीज़ में. तो what happened due to that? ओवर क्राउडेड सिटीज. अब कहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई, सिटीज़ में. फोर्थ पॉइंट, स्टिफ कॉम्पिटिशन बिटवीन हैंडमेड गुड्स एंड मशीन मेड गुड्स, यानी कि अब हैंडमेड गुड्स और मशीन मेड गुड्स में कॉम्पिटिशन हो गया. क्यों? इंडस्ट्रीज वेल डेवलप, और जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो फैक्ट्रीज में जो सामान बनने लगा उनका क्या था, मशीन मेड गुड्स, तो वो चीप रेट पर मिल रहा था. जो हैंडमेड गुड्स था वो हाइयर प्राइस ही. तो यानी कि दोनों के बीच में एक स्टिफ यानी कि हार्ड कंपटीशन शुरू हो गया हैंडमेड गुड्स और मशीन मेड गुड्स में. राइज ऑफ फूड प्राइसेस. अब ये हुआ कि राइज ऑफ फूड प्राइसेस कैसे इंक्रीज हुए, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई. पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो क्या होगी, मोर पीपल टू बी फेड. अब ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना था तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए वहाँ पर. तो और ऊपर से क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट, फसल खराब हो गई, और क्रॉप फेलियर. एंड जब ये हुआ चीज़ें तो क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. डिमांड ज़्यादा है लेकिन शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. क्यों? क्रॉप फेलियर और बैड हार्वेस्ट की वजह से. एंड तो फॉर दैट पर्पज आउटबर्स्ट ऑफ पीपल इन 1848. तो व्हाट हैपन, द ईयर 1848 वाज द आउटबर्स्ट, फूड शॉर्टेज और एक वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. एक तो फूड शॉर्टेज हो गई यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने से. सेकंड रीजन क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट. तो व्हाट हैपन, पीपल केम आउट ऑन द रोड. पेरिस में लोग क्या किए, केम आउट ऑन द रोड. लोग पेरिस मतलब रोड के ऊपर आ गए. एंड आफ्टर दैट लुइस फिलिप, आपको शायद लास्ट पैराग्राफ में रिमेंबर होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी फ्रांस में, तो वहाँ का मोनार्क किसको बनाया गया था, लुइस फिलिप. वाज फोर्स टू फ्ली, यानी कि लुइस फिलिप को भी मजबूर कर दिया कि छोड़कर जाने के लिए. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपन, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम. नेशनल असेंबली को क्या डिक्लेयर कर दिया गया पब्लिकली, प्रोक्लेम ए रिपब्लिक. और इसमें क्या गया, अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या था, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबोव 21, यानी कि जो अबोव 21 है सभी को वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया गया. क्लियर अप टू कि कैसे वहाँ पर हंगर हार्डशिप्स प्रॉब्लम हुई और कैसे लोगों ने पॉपुलर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. 1830s में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, लोगों को इससे क्या क्या हार्डशिप्स हुई हमने देखा. इनोरमस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन ऑल ओवर यूरोप. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, पीपल रिड्यूस देयर जॉब. रिड्यूस जॉब से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ. थर्ड रीजन हम क्या कह सकते हैं कि लार्ज स्केल रूरल माइग्रेशन टू सिटीज.
the when rural migration to cities. So what happened after that? Overcrowded cities. Now due to the industrialization, stiff competition started between the handmade goods and the machine made goods. So now rise of food prices also increase. Why? For which purpose? Now more people to be fed, क्योंकि here population increase, now they want to fulfill all the requirement, and after that why they couldn't fill all the requirement? Because bad harvest and crop failure and shortage of food. So after that in 1848 in the Paris, most of the people came out on the road के ऊपर आ गए, and they have started revolt against the after that what happened? Louis Philippe was forced to flee. लुइस फिलिप को भी छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा, जो मोनार्क था. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक एंड ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21. नाउ in that paragraph we will discuss about the 1845 weavers revolt. Why the weavers revolt here? Silesia, we will take the example of which village? Silesia had led a revolt against the contractors. क्यों उन्होंने contractors के खिलाफ revolt start कर दिया था? Contractors they who supplied them raw materials. इनको raw material कौन provide करवाता था weavers को? Contractors. And gave them order for finish टेक्सटाइल, और उनको ऑर्डर देते थे कि आपको ये कपड़ा बनाकर तैयार रखना आपको, बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट. और जैसे ही वो फिनिश प्रोडक्ट बना के तैयार हो जाता उनका क्या कर देते थे कॉन्ट्रैक्टर? उसी समय उनका प्राइस कम कर देते थे. और मेनली जो सिलेसिया में क्या था, जो वीवर्स क्या था, वीविंग एक कॉटन वीविंग एक मेन ऑक्यूपेशन था वहाँ का. वहाँ के मोस्ट ऑफ द पीपल किसके ऊपर डिपेंड थे? मतलब वीविंग के ऊपर डिपेंड थे. तो अब धीरे धीरे उन्हें सभी वीवर्स ने मिलकर क्या किया? They started revolt against the contractors and now they demanded the high wages. अब इन्होंने हाई वेजेस मांगने की, हमारे जो आप काम करवा रहे हो उसके गुड प्राइसेस दो. फॉर दैट पर्पज दे हैव रिवोल्ट अगेंस्ट द contractors. After that what happened? They have done, they ग्रुप दैम, फोर्स दैम टू वे इन टू द हाउस. और इन्होंने क्या किया? जो उनकी एलिगेंट विंडो थी उनको तोड़ फोड़ कर दिया, जो उनको वेयर हाउस थे उनके ऊपर अटैक कर दिया. तो कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या कर मर्चेंट्स को अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना पड़ा. उनको बाद में किनकी शरण लेनी पड़ी? आर्मी को उनको प्रोटेक्ट करना पड़ा. तो इसी मोमेंट में कितने 11 वीवर्स डाइड हो गए. इतने भी ना, द फुल 11 वीवर्स वर शूट. कितने वीवर्स को शूट कर दिया गया यहाँ पर? 11 को. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस दैट पैराग्राफ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. कि इससे हमें पता चलता है कि कैसे जो रिवोल्यूशन की जो चेंज चली थी 1830 से 1848. पहले हमने क्या एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर कि सबसे पहले अपहेवल जुलाई 18 कहाँ से स्टार्ट हुआ था? फ्रांस से स्टार्ट हुआ 1830. फिर उसके बाद हमने देखा बेल्जियम गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से उसको मिला. फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने देखा जो 1821 से स्टार्ट होकर फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कौन से ईयर में हुई? 1832. उसके अकॉर्डिंग ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया गया. और ये अब हमने इसका पीछे रीजन देखा कि क्यों फ्रांस, जो मैटरनिच ने भी वर्ड यूज़ किया था, व्हेन फ्रांस नीजीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप विल कैच इज कोल्ड. ये वर्ड यूज़ किया क्योंकि जो भी इंसिडेंट स्टार्ट हुआ सब कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रांस से. ये सारा इंसिडेंट हुआ कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ऑल ओवर यूरोप, फिर कैसे लोगों की रिड्यूस जो हुआ, कैसे स्टिफ कंपटीशन हुआ मशीन मेड और हैंडमेड गुड्स के बीच में, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद प्राइसेस हाई हो गए फूड के. तो इससे क्या हुआ? लोग रोड पर आ गए. कहाँ पर? पेरिस में. इसीलिए वहाँ का जो मोनार्क था लुइस फिलिप, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, उसको भी फ्ली होना पड़ा, जाना पड़ा. फिर जो नेशनल असेंबली है उसको पब्लिकली क्या रिक्लेम कर दिया? प्रोक्लेम कर दिया, रिपब्लिक बना दिया. अगर रिपब्लिक का मतलब क्या था कि सफ्रेज, ग्रांटेड सफ्रेज. सफ्रेज किसको दिया गया? टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जिनकी 21 ईयर्स एज थी अबव, उन सभी को वोटिंग राइट्स दिया गया. फिर इसी में हमने देखा 1845 का कि कैसे सिलेशिया वीवर्स ने रिवोल्ट किया था किसके खिलाफ? कॉन्ट्रैक्टर के. कॉन्ट्रैक्टर्स उनके लिए क्या कर रहे थे? दे सप्लाइड फॉर द रॉ मटेरियल्स एंड आफ्टर दैट व्हाट दे आर सेइंग, गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल्स, बट ड्रास्टिकली दे रिड्यूस देयर पेमेंट. पर बाद में वो क्या कर देते थे? उनका पेमेंट डिडक्ट कर देते थे. फॉर दैट पर्पज वीवर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स, और इन दैट मूवमेंट 11 वीवर शूट दैट. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. नाउ इन द नेक्स्ट video we will discuss about the revolt, the 1848 the revolution of the liberals.
unification of Germany, unification of Italy, and the Great Britain we will also see how the Great Britain came into existence. Rest of these are the topics we will cover in the next video. I hope you understand in the proper way. Thank you.